دی, سماج کو زناکاری کی دہلیز پہ لا کے کھڑا کر دیا. ایسا نہیں کہ پڑھنے لکھنے کے بعد آدمی بار بار دیکھے گا تو جی بھر جائے گا, جہاں نہیں دیکھا جاتا ہے وہاں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, جہاں دن رات دیکھتے رہیں گے وہاں شوق مٹ جائے گا. 110% جھوٹ ہے یہ, اینٹی نیچرل بات میں صداقت کہاں سے آئے گی؟ کلکتہ کے میڈیکل کالج میں کیا ہوا جہاں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, ایم ڈی لڑکی کے ساتھ کالج کے پرنسپل نے کو کالا کرتوت کیا کہ ساری دنیا میں ہندوستان کی تو بچ گئی, بدنامی ہو گئی. ڈاکٹر پڑھنے والی لڑکیاں ڈاکٹر, صاحب تہخانے میں ریکٹ چل رہا ہے. کیا نہیں ہندوستان میں ہو رہا ہے, کبھی تھانے میں, کبھی جی آر پی ایف نوجوان کے سامنے, کبھی شیلٹر ہوم میں, کبھی ہاسٹل میں, کبھی صاحب بھوپال اور صاحب کوٹا میں ہاسٹل میں, گرلز ہاسٹل, بوائز ہاسٹل, کیا تماشے ہو رہے ہیں سب کو معلوم ہے. اللہ نے ایسے نہیں کہا تھا کرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ. یہ اللہ ہی پیدا کیا انسان مرد اور عورت کو, اب پیدا کرنے والے کو ہی خوب معلوم ہے کہ اس کی طبیعت کیا ہے, اس کی طبیعت کیا ہے, اور دنیا کیسے چلے گی وہ خوب معلوم ہے. تو اللہ نے کیا کہا, اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, کرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ. اللہ پیدا کرنے والا وہ کہتا ہے کہ عورتوں تم گھر میں ٹھہری رہو, دور جاہلیت کی بے پردہ آوارہ گھومنے والی عورتوں کی طرح مت ہو جاؤ. اب اسلام آ گیا ہے, قانون آ گیا ہے, تم مصطفیٰ کی کنیز ہو, کنیز بن کے رہو. اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں رہو, اے مسلمانوں کی بیٹیاں, مسلمانوں کی عورتیں بیویاں, یا معاشر اے مسلمانوں کے کرو. اللہ نے کیا فرمایا, کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے مسلمانوں نگاہیں نیچی رکھ, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اے حبیب آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے وہ نگاہیں نیچی رکھیں. آوارہ یہاں چھت پہ, وہاں دکان پہ, دوسروں کے چہرے پہ, یہ آوارہ نگاہ مت دوڑا, نگاہیں نیچی رکھ. مرد بھی نگاہیں نیچی رکھیں, عورتیں بھی نگاہیں نیچی رکھیں. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھر میں ٹھہری رہو, اپنے گھر میں ٹھہری رہو. تو اللہ نے تجھ کو ایسا بنایا ہے جس میں مردوں کے لیے کشش رکھا ہے. یہ کشش اسی لیے ہے تاکہ تیرے سے ان کی شادی ہو, تجھ سے ان کو راحت ملے, ان سے تجھ کو راحت ملے. لیکن اگر آوارہ سڑکوں پہ گھومنے لگو گی تو عام اجنبی مرد تم کو نشانہ بنائیں گے, تو ایک درندہ بھیڑیا کی طرح تمہیں نوچ کھائیں گے, تمہاری عزت کو خطرہ ہے. اللہ نے تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں دی ہے تاکہ مرد کے لیے تیرا چہرہ خوبصورت لگے. اللہ نے سر سے لے کے پاؤں تک تیرا جو ڈھانچہ بنایا ہے اس ڈھانچے میں کشش ہے, اس ڈھانچے میں حسن و جمال ہے, مرد کی خوراک ہے. وہاں اللہ نے ایسا اسٹرکچر بنایا ہے جس میں بچوں کی خوراک کا انتظام ہے, اب بچوں کے باپ کی خوراک کا بھی انتظام ہے, تو بچوں کے باپ کو بھی اس سے لطف حاصل ہوگا, اور تمہارے بچوں کی خوراک کا وہ ذریعہ ہے. اسی لیے ایسا اسٹرکچر ہے. اب جو تم مردوں کی طرف بنیان پہن کے گھومو گی تو سماج کے مردوں کا کیا حال ہوگا؟ آوارہ گنڈا, اس کی نظر تجھ پر پڑے گی, اور 10 بندے جو تم کو نوچنا چاہیں گے تو تیری عزت تو پامال ہو جائے گی, جان بھی خطرے میں پڑے گی. اور جہاں بھی ایسا ہوا ایسا ہی ہوا. دہلی میں رات کے 10 بجے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بس پہ گھومنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اگر وہ بس کا کنڈکٹر, وہ بس کا ڈرائیور اور 2-4 آدمی مل کر کے ان کی عزت کو لوٹا اور پھر اس خطرناک ڈھنگ سے اذیت دی, وہ عورت تاب نہیں لا سکی, 40 دن کے بعد مر گئی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا کہا قرآن نے, کرنا فی بیوتکن, اپنے گھر میں ٹھہری رہو, آوارہ عورتوں کی طرف مت پھرا کرو. تم اس لیے کہ تمہارے پاس کشش ہے, اللہ نے وہ کشش تم کو دی ہے. مردوں کے لیے تیرے اندر میں اٹریکشن رکھا ہے, تم اٹریکشن نہ رہے تو پھر تمہارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تمہاری ماں کہاں, تمہارا باپ کہاں, تمہارا سماج کہاں, تمہارے رشتہ دار کہاں؟ ایک اجنبی مرد تجھ کو اللہ کے نام پہ قبول کرتا ہے, بیوی بنا کے تجھ کو رکھتا ہے, پھر تم سارا سماج, سارا سنسار بھول کر اپنے شوہر کے بن کے رہ جاتی ہو. یہ کون ہے جو اجنبی دل میں تیری محبت عطا کر دیتا ہے؟ جہاں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہاں کیا ہوگا؟ وہی جو جبل پور کا ڈھابا والا کیا, ناگپور کے ایک مسلمان گھرانے کی بیٹی, یہ بالکل ماڈرن بننے کے چکر میں, جہاں دین نہیں, اسلام نہیں, عالموں کا آنا جانا نہیں, وہاں تو دین کو خطرہ ہے. اب وہاں صاحب ماڈرنائزیشن, جدت کے نام پہ ماڈرنائزیشن
मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, जदीद कल्चर के नाम पे, वेस्टर्न कल्चर के नाम पे अब क्या हुआ, आधुनिक के युग में आधुनिक तौर पे चलने के लिए लव मोहब्बत प्यार के नाम पे मोहब्बत करी, मजहब को तर्क किया, उनके साथ गए। सारा हिंदुस्तान जाना किस तरह उसके बदन को निचोड़ कर उसको ज़बह करके गला दबा के जबलपुर के एक नाले में उसको घुसेड़ दिया, जहां अल्लाह का डर नहीं होगा, जहां सिर्फ नफ्स की तस्कीन की जाएगी। वहां तो नफ्स की ख्वाहिश पूरी हुई, उसके बाद तुम कौड़ी के 3 हो गए। कोई काट देगा आफ्ताब पूना वाला, जो लिव इन में बगैर शादी के दोनों आपस में रह रहे हैं, और उसको नाम क्या दिया गया है, लिव इन में रह रहे, लिव इन में रह रहे। ये कौन सा नाम? इस्लाम के खिलाफ जितना भी नाम है, चाहे लव का नाम, मोहब्बत का नाम, वह सब जिनाकारी है। लिव इन जिनाकारी है, बगैर निकाह के रह रहे हैं। ये जिनाकारी कैसी व्यवस्था है वो, जिसको कानूनी तौर पर जवाब फराहम किया गया है। मर्द मर्द के साथ निकाह करें, औरत औरत के साथ निकाह करें। लोग कहते हैं अक्लमंद दुनिया में बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो हुजूर ने कहा था आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग पागल दीवाने की तरह होंगे। पागल दीवाने ही है ना जो मस्जिद में कम नजर आते हैं, शराब की भट्टी में ज्यादा नजर आते हैं। वह पागल दीवाना ही तो है जो जलसे में नात तकरीर कुरान हदीस सुनने के लिए कम रहते हैं और हारमोनियम तबला बाजा सुनने के लिए लाखों की भीड़ लगा देते हैं, और लोग खुश हैं कि लाखों की भीड़ लग गई। लाखों की चोरों की भीड़, डकैतों की भीड़, शराबियों की भीड़, गोंडों की भीड़, बेनमाजियों की भीड़, उससे तू खुश होता है। वो तेरे दिल में नफाक पैदा होगा। जो गंदा गंदे को पसंद करता है, पाखाने का कीड़ा पाखाना को पसंद करता है, और भौरा गुलाब को पसंद करता है, नमाजी मस्जिद पसंद करता है, मुसलमान कुरान हदीस पसंद करता है, और जो आवारा है वो आवारगी की महफिल को पसंद करता है। और जो जिस तबीयत का मालिक होगा वो वैसा ही पसंद करेगा। जो जहन्नमी होगा वो नाच गाने को पसंद करेगा, वो सनीमा को पसंद करेगा, वो हारमोनियम तबला बाजा को पसंद करेगा। और जो जन्नती होगा उसको तो अल्लाह का कलाम प्यारा है, मुस्तफा की नात प्यारी है, उसको तो कुरान प्यारा है, उसको तो मस्जिद प्यारी है, उसको तो जो अल्लाह रसूल की बात जिस जलसे में की जाए वह महफिल उसके नजदीक प्यारी है। अब भीड़ को देख के खुश होता है। भीड़ तो शराबियों की है, भीड़ तो गुंडों की है, भीड़ तो लुच्चों लफंगों की है। भीड़ मस्जिद में अगर लग रही हो मुबारक है, भीड़ अगर दरसगाह में लग रही हो मुबारक है, अगर भीड़ दीनी महफिलों में अगर हो रही हो कुरान हदीस सुनने वालों की, तब वह भीड़ मुबारक है। वरना क्राउड को देखेगा तो अभी तो कई लाख क्राउड वहां पर लगने वाला है, कई लाख की भीड़ वहां जमा होने वाली है। नाम मैं नहीं लूंगा, वहां भीड़ जमा होने वाली है, जगह जगह पोस्टर लग रहा है, शिरक की भीड़ लगने वाली है। भीड़ को कभी कभी अमेरिका में लगती है, अभी 31st नाइट को भीड़ गोवा में समंदर के किनारे लगने वाली है। अभी लोग 15-15 लाख रुपए खर्च करके लोग अफ्रीका से, अमेरिका से, न जाने कहां कहां से आएंगे तुम्हारे हिंदुस्तान के गोवा में समंदर के किनारे। अब क्या करेंगे वो? वहां जुआ भी खेलेंगे, शराब भी पिएंगे, और फिर डुबकी लगाएंगे समंदर के किनारे रेत पर, बिल्कुल मीठी मीठी धूप का मजा लेंगे। जहां शराब, जहां ज़िना, जाके देखे 15-15 लाख रुपए खर्च करके कितनी भीड़ लगी है। अभी गोवा एयरपोर्ट पे जहां हर तरफ शराब की बदबू मिलेगी, समंदर के किनारे जाएं बिल्कुल सफेद किस्म के लोग, गोरे सफेद किस्म के लोग, बिल्कुल ऐसा लगेंगे जैसे सफेद बाल वाला कोई जानवर नदी के किनारे सोया हुआ है। तो उस भीड़ को अच्छा समझेगा। जहां 15 लाख रुपए खर्च करके लोग आए हैं, तो भीड़ भीड़ का नाम मत लेना। एक बंदा अगर राहे हक पर है वही स्वाद आजम है, वही सबसे बड़ी जवाब है। अगर कुफ्र की तरफ करोड़ों लोग खड़े हैं, अगर वो गलत है, कुफ्र है, शिरक है, जुर्म है, हराम है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इमाम हुसैन का है जो 72 मिल के वहां थे। अब 22,000 जो हुसैन के मुखालिफ आए हैं, हक वहां नहीं है, हक हुसैन के पास है। क्राउड हुसैन के पास नहीं है, क्राउड यजीदियों के पास है। इसलिए क्राउड की बात, भीड़ की बात कभी जबान पे मत लाना। यहाँ क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, इस्लाम में क्वालिटी देखी जाती है। एक नमाजी 1,000 शराबी पे भारी है, क्योंकि उनके साथ शैतान है, इनके साथ खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। क्राउड की बात मत करना, भीड़ की बात मत करना, क्वांटिटी की बात कर, क्वालिटी की बात करना। क्वालिटी जिसके पास है वो, अल्लाह ने जो कहा वो सच है। अल्लाह से हट के जब बंदा सोचेगा दुनिया में तबाही आएगी। नहीं देखा तुमने 5 बलात्कारी को फांसी की सजा हो गई, लेकिन उसके बावजूद आए दिन ज़िना और रेप और कत्ल के मामला पेश आ रहे हैं।
क्यों नहीं रुक रहा? मैं तो अक्सर कहता हूं, आपने 5 बंदों को फांसी दे दी, फिर भी रेप नहीं रोक पाया, क्राइम नहीं रुक पाया। यहां तक कि पढ़े लिखे लोग मेडिकल कॉलेज में इस तरह की बुराई कर रहे हैं, तहखाने में इस तरह का कारोबार चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां दिन रात लड़कियां अधनंगी चल रही हैं, लिबास पहनने के बाद भी वो नंगी ही नजर आती हैं, तो फिर वहां देखते देखते जी भर जाएगा। ये भरने वाली चीज नहीं है। ऐसा थोड़ी कि आज मैं 10 रोटी खा लूं तो कल भूख नहीं लगेगी, आज मैं पानी पी लूं 1 लीटर तो कल प्यास नहीं लगेगी। नहीं, जब तक बंदा जिंदा है तब तक प्यास लगेगी, जब तक बंदा जिंदा है तब तक भूख लगेगी, और जब तक बंदा जवान है तब तक औरतों की चाहत होगी। इसीलिए अब उस चाहत को कंट्रोल देना है, उस भूख को कंट्रोल देना है, उस प्यास को एक लाइन देनी है। ऐसा नहीं कि जो मिले सब पी ले, नहीं, क्या पीना है क्या नहीं पीना है ये बताना है। क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या परमिटेड है क्या फॉरबिडन है, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या पिए क्या नहीं पिए, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये देखना है। उसी तरह जब औरतों की ख्वाहिश हर मर्द के दिल में है और मर्दों की ख्वाहिश हर औरत के दिल में है, अगर ये ख्वाहिश बेलगाम हो गई तो समाज में जुल्म होगा, समाज में कत्ल होगा, समाज में अफरा तफरी रहेगी। बीवी रहेगी दूसरे की, 10 गुंडे की नजर में उसकी बीवी अच्छी लगी, फिर उसकी बीवी को वहां से बाई फोर्स निकालेगा, उससे रेप करेगा, उसको कत्ल करेगा। ये समाज में कत्ले आम हो जाएगा, औरतों को पाने के लिए कत्ले आम हो जाएगा। इसलिए कहा गया जब आपकी कचहरी, आपका कोर्ट, आपकी आर्मी, आपकी फौज जब रेप नहीं रोक पाई तो आप कानून पर्दा का मजाक उड़ाते हैं। नहीं देखा आपने किस कदर दौरे जाहिलियत में औरतें बेपर्दा रहती थी, सौतेली माओ से दुर्व्यवहार होता था। एक बाप की 2 बीवियां हैं, बाप अगर मर गया तो उसका बेटा अपने बाप की बीवियों के साथ बलात्कार करता था, उसको बाप के छोड़े हुए माल की तरफ विरासत में कर लेता था। लेकिन मालूम है जब पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में अहकाम लेके आए, जब हिदायत और दीन हक लेके आए, तो हुजूर ने क्या कहा था, देख लेना वो दिन आके रहेगा कि एक औरत हीरा से चल के तवाफ़े काबा करने आएगी, खाने काबा का तवाफ करके लौट जाएगी, कोई पूछने वाला तक न होगा कि तू कौन है, कहां से आई है। वो अमन कायम होगा। तो अमन कायम हुआ जहां सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार होता था, जहां पड़ोसी की औरतों से ज़िना होता था, जहां पानी से ज्यादा शराब पी जाती थी। अचानक वो मुआशरा कैसे बदल गया, कैसे बदल गया। खुद नते जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अरब के वही लोग जो चोर थे दूसरों के माल के मुहाफिज बन गए, जो अपनी सौतेली माताओं की आबरू के लुटेरे थे वो अजनबी औरतों की आबरू के मुहाफिज बन गए। जो एक सिक्के की खातिर चोरी करते थे अब करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, चोरी करना तो दूर उस माल के मुहाफिज बन के खड़े हैं, कोई इसका माल ले जाए। ऐसी सोच कहां से बदल गई। आका ने कहा था अभी खौफ में तुम लोग जी रहे हो और कहते हो कि हम लोग कैसे, हम लोग इस्तिंजा करने बाहर जाते हैं तो भी जान का खतरा लगा रहता है। हुजूर ने कहा था सब्र करना, वो दिन आने वाला है कि अमन का राज होगा, हर तरफ पीस कायम होगा। यहां तक कि एक औरत हीरा से चल के आएगी, तवाफ़े काबा करके लौट जाएगी, कोई पूछने वाला न होगा कि तू कौन है, कहां से आई है। वो दिन आके रहा। एक सहाबी कहते हैं मैंने देखा वो दिन आ गया जब इस्लाम का दबदबा कायम हुआ, इस्लामिक गवर्नमेंट कायम हुई, कुफ्र और शिर्क पर तबाही आई। सारे कुफार और मुशरिकीन कुछ तो मारे गए और जो सारे कलमा पढ़ लिए। जब हर तरफ इस्लामी सल्तनत कायम हुई, चोरी खत्म, डकैती खत्म, शराब नोशी खत्म, सेनाकारी खत्म, यहां तक कि वह लोग सेना के आदि अब इस कदर अंदर से बदल गए तो कहते मैंने देखा एक औरत जेवरात से लैस होकर आई है, हीरा से इराक से चलकर तवाफ़े काबा करके लौट गई है। रास्ते में सिवाय दरिंदा जानवरों के किसी इंसान की तरफ से कोई मजालिम का कोई खौफ नहीं था। तो अचानक ऐसा किसने बदला? वो कानून मुस्तफा था जो समाज बदल दिया, वो कानून मुस्तफा था जो बंदों की टेंडेंसी बदल दी, जो जीने का अंदाज बदल दिया। आज आपके पास कचहरी है मगर रोजाना आपके अखबारात में बलात्कार की खबरें आ रही है, रोजाना रेप की खबरें आ रही है, रोजाना कत्ल की खबरें आ रही है। औरतें बचेंगी, औरतें पढ़ेंगी का नारा दे रहे हैं, रोजाना औरतें मारी जा रही है, पामाल की जा रही है। साहब औरतों के साथ ज़िना हो रहा है, पब्लिकली ज़िना हो रहा है, लोगों की हुजूम के सामने उसको नंगा किया जा रहा है, उसके साथ रेप
रेप हो रहा है और आप तमाशा देख रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब नारियां बचेंगी, नारियां पढ़ेंगी। इसीलिए पढ़ेंगी नारियां मेडिकल कॉलेज में, ताकि मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल उसके साथ रेप करे, उसको कत्ल कर दे। तो आपको समझ लेना चाहिए, आप पुलिस की मौजूदगी में रेप नहीं रोक पाए, आर्मी की मौजूदगी में रेप नहीं रोक पाए, सल्तनत की मौजूदगी में रेप नहीं पाए, तो अब तो कम से कम एक फार्मूला को अपना लीजिए। वह फार्मूला मुस्तफा का है, वह कानून पर्दा, उसको अपना लीजिए कि मर्द औरतों से अलग रहे, औरतें मर्द से अलग रहे। जब रेलवे स्टेशन में दोनों का डब्बा अलग रह सकता है, तो पढ़ने के इदारे भी, गर्ल्स कॉलेज अलग रहे, बॉयज कॉलेज अलग रहे, पढ़ाने वाले यहाँ मर्द रहे, पढ़ाने वाली वहां औरतें रहे, ट्यूशन सेंटर में दोनों अलग रहे, कोचिंग सेंटर में दोनों अलग रहे। मखलूत निज़ाम तालीम को बंद कीजिए। 18 साल का जवान, 18 साल का जवान लड़का, जवान लड़की एक टेबल पर दोनों पढ़ेंगे तो रेप से कोई उसको रोक नहीं पाएगा। अगर 2-4 लड़कों की नजर पर पड़ी तो फिर आपस में कत्ल होगा उसको पाने की खातिर। तो आपने आर्मी की मौजूदगी में, कचहरी की मौजूदगी में जिना नहीं रोक पाया, तो अब तो मेरी बात से कम मान लीजिए, मुस्तफा का कानून अपना लीजिए। अब कानून पर्दा नाफिज कीजिए, करना फी बयूते कुन्ना पे अमल कीजिए, वो यहफज़ना फुरूजहुन्ना पे अमल कीजिए, कुल्लिल मुमिनात यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना पे अमल कीजिए। औरतों को पर्दे में रखिए, मर्दों को उसके करीब न जाने दीजिए। सोशल तौर पर शादी करके एक दूसरे से करीब होइए। अल्लाह ने आपके लिए ही बनाया है, आपको उनके लिए बनाया है, तो सामाजिक तौर पर निकाह करके एक दूसरे से कुर्बत हासिल कीजिए और ज़िना के तौर पर नहीं। तो मैं दावे से कहता हूं, जिस दिन मुस्तफा का कानून पर्दा दुनिया में नाफिज हो जाए, 90% रेप और कत्ल का मामला खत्म हो जाएगा। उसी तरह अमन कायम होगा जैसे मुस्तफा के कानून ने अरब में अमन का नाफिज कर दिया और अमन अरब से ज़िना, शराब, लूट खसोट सबको मिटा दिया। ऐसा मिटाया कि आज तक वहां पे उस तरह की बेहयाई नहीं आई। इसलिए ये कानून आपने आजमाया है, उसको आजमा के देखिए। कानून पर्दा को रेप घटेगा, इज्जत का माहौल पैदा होता चला नारे तकबीर, घटेगा, इज्जत का माहौल नारे पैदा होता चला। रिसालत, नारे गौसियत। ठीक है, मैं तो उम्मीद करता हूं कि कभी भी नहीं गवर्नमेंट इस बात को तस्लीम करेगी जब उनको हिजाब बर्दाश्त नहीं है, उनको निकाब बर्दाश्त नहीं है, तो फिर उनको ये कानून पर्दा कैसे बर्दाश्त होगा। उसको कम से कम जो मुस्तफा का गुलाम है, जो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला है, जो मुस्तफा को अपना नबी और पेशवा रहनुमा मानने वाला है, कम से कम ये तो कर सकते हैं। ये तो कम से कम इंजीनियर, डॉक्टर बनने के शौक में अपनी बेटी को बेपर्दा न करें। कम से कम ये तो कर सकते हैं, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के चक्कर में अपनी बेटी को जींस और टी शर्ट पहना करके समाज को सेना की दावत ये तो न दें। कम से कम ये तो मुस्तफा के उसूल पे अमल करें। कम से कम ये तो कुरान पाक की हिदायतों को माने। कम से कम ये तो बुजुर्गान दिन के तर्ज जिंदगी को अपनी जिंदगी में दाखिल करें। काम सारा काफिरों जैसा, और उम्मीद करते हैं अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाए, बरकतें नाजिल हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। काम करना होगा मुस्तफा के गुलामों जैसा। फिर आप दुआ नहीं भी करें, काम अगर गुलामी मुस्तफा जैसा है, तो फिर वही डॉक्टर इकबाल की जबानी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा हिफाजत नाजिल करेगा, खुदा बरकतें नाजिल करेगा। अब जरा गौर से मैं एक चैप्टर खोलता हूं, बस उस चैप्टर में सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। हमारी सोच का इलाज भी है, हमारे मौजूदा तर्ज जिंदगी, तर्ज हयात को भी एक आईना दिखलाता है। मैं अक्सर व बेशतर अभी लोगों से कह रहा हूं, कसूर अपना है और कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है। कसूर हमारा है, कहते हैं रसूलुल्लाह कहाँ है। कसूर हमारा है, कहते हैं कि अल्लाह की मदद कहाँ है। और फिर जब ज्यादा उसका झुंझला जाए दिल, तो झुंझला कर कुफ्र कबूल कर लें, उसी के साथ चले जाएं। ये माल का इश्क, ये हुस्न का इश्क, ये दुनिया के इख्तिदार का हुस्न, इख्तिदार का इश्क बंदे को तबाह हो बर्बाद कर डालेगा। हुजूर ने कहा था ये दुनिया आरजी है, फानी है। आका ने समझाते हुए कहा था, क्या कहा था? वल्लाहि, अल्लाह की कसम। हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत है? सरकार ने कहा अल्लाह है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कुरान है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा जन्नत और जहन्नम है, हमने मान लिया। फिर हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत है? मगर हुजूर हमारे लिए, हमारे नजदीक ये बताने के लिए कि बहुत अहम मामला है, ये अहम बात है, मैं तुमसे कह रहा हूं। इसलिए हुजूर ने गाहे बगाहे कसम खा करके बात को हमारे लिए मौक़त बनाने के लिए, उसको ताकीदी तौर पर हमारे लिए हुजूर ने कसम खा के कहा। जैसे एक बार हुजूर ने कहा था, मैं इस बात पे कसम खा सकता हूं कि जो जुल्मन सताया जाता है, कसूर नहीं है, मगर फिर भी जालिम उसको सता रहा है,
تو حضور نے کیا فرمایا؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ جو ظلمن ستایا جاتا ہے، قصور نہیں ہے ہمارا، اور پھر بھی یہ ہم کو ستا رہا ہے، مصطفیٰ قسم کھا کے کیا کہتے ہیں؟ سچوں کے سردار، سچوں کے سردار کیا کہتے ہیں؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو ظلمن ستایا جاتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور حضور نے دوسری قسم یہ کھائی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ اب سماج میں اگر کوئی یہ بولے کہ ہم تو پہلے بہت خیرات کرتے تھے، بہت زکوٰۃ نکالتے تھے، بہت غریب و مسکینوں کو دیتے تھے، میرا مال کیوں گھٹ گیا؟ تو یہ مال صدقہ دینے سے نہیں گھٹا ہے، یہ مال کسی دوسرے ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے گھٹا ہوگا، کوئی خارجی عوامل اس کے ہوں گے جس کی وجہ، جیسے وہ بزنس ٹھیک سے نہیں کر رہا، ٹائم پہ دکان نہیں جا رہا، محنت اور لگن شیلتا سے کام نہیں کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے بزنس میں، یا پھر دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، 5 روپے کا مال 5000 میں بیچ رہا ہے، کچھ تو فیکٹر دوسرا رہے گا۔ یہ کہ میں صدقہ کر رہا تھا تو میرا مال گھٹ گیا، یہ 110% جھوٹ ہے۔ مصطفیٰ سچوں کے سردار ہیں، وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، یہ 100% تجربہ بھی ہے، اور سارے لوگ آزما بھی لے اس کو کہ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ ہم کو اور آپ کو تو تجربہ کم ہے، مگر بمبئی کے ان سیٹھوں کو زیادہ تجربہ ہے جو 1.5 کروڑ زکوٰۃ نکالتے ہیں ہر سال، 5 کروڑ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ 1 کروڑ میں زکوٰۃ کی رقم نکلتی ہے 2.5 لاکھ روپے، 1 لاکھ میں 2500، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ، 100 کروڑ میں 2.5 کروڑ۔ تو جن کے پاس 500 کروڑ کی جائیداد ہے، جن کے پاس 1000 کروڑ کی جائیداد ہے، وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ میں رقم کتنی نکلی؟ 5 کروڑ۔ زکوٰۃ میں کتنے روپے نکلے اس کے؟ 2 کروڑ۔ ہم لوگ 2 کروڑ کا کبھی منہ نہیں دیکھتے ہیں، وہ 2 کروڑ زکوٰۃ نکال کے مدرسے میں دے دیے، اپنے پیر صاحب کو دے دیا 1 کروڑ روپیہ کہ آپ ان کو اپنے جہاں اپنے مدرسے ہیں، جہاں پڑھائی ہوتی ہے، جہاں غریب بچے کھاتے پیتے ہیں، بانٹ دیجئے۔ ہم لوگ تو 1 کروڑ کمائیں کتنے سال میں، یہاں 1 کروڑ ہر سال نکال رہے ہیں۔ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں زکوٰۃ میں جتنے پیسے نکالتا ہوں تو میرا مال تو گھٹ جانا چاہیے۔ ہمارے پاس 1000 کروڑ ہے، ہم نے 2.5 کروڑ نکال دیا، مال تو گھٹ جانا چاہیے۔ کہا نہیں، میں 2.5 کروڑ نکالتا ہوں تو اللہ اس کے بدلے میں ہم کو 25 کروڑ عطا کرتا ہے۔ جب 25 کروڑ عطا نہیں کرتا ہے تو پھر اگلے سال کیسے نکالا؟ پھر وہ اگلے سال کیسے نکالا؟ پہلے وہ نکالتا تھا 50 لاکھ، اب نکال رہا 1 کروڑ، اب پھر نکالا 1.5 کروڑ، پھر نکالا 2 کروڑ، پھر نکالا 3 کروڑ۔ سچ کہا صادق و مصدوق مصطفیٰ نے کہ صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، اور ظلمن جو ستایا جائے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی نیت اچھی رہے۔ مصطفیٰ نے کیا کہا اس دنیا کو حقیر بتانے کے لیے؟ مصطفیٰ نے کیا کہا ذرا غور سے سنیے۔ اسی دنیا نے مجھ کو پاگل کیا، اسی دنیا نے مجھ کو بیٹی کو جینس ٹی شرٹ پہنوا کے رات صبح کے 4 بجے کوچنگ سینٹر بھیجنے پر مجبور کیا تاکہ وہ پڑھے گی، اچھے نمبر لائے گی، ٹیچر کی نوکری ملے گی، اور روزانہ 5 گھنٹے 62 برس تک وہ جائے گی، اس کی زندگی میں آگ لگے گی۔ یہاں تو بغیر پیسہ کمائے ہوئے شوہروں کے بال نوچ رہی ہے، اور جو خود ہر مہینے 1,50,000 کمائے گی، پھر اس کا دماغ تو آسمان پہ رہے گا، پھر شوہروں کا تو جینا حرام کر دے گی۔ یہاں بغیر کمائے ہوئے سرداری ہے۔ اچھا وہ خود سے 1 لاکھ مہینہ کمانے لگے تو کیا حال ہوگا اس کا؟ اسی لیے ان کو کہا کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ آوارہ پھرتی مت رہا کرو، پردے میں رہا کرو۔ اگر ضرورتاً گھر سے باہر نکلنا پڑے تو سر سے لے کے پاؤں تک ایسی موٹی چادر ڈال لے کہ آواروں کی نظر تجھ پہ نہ پڑے۔ یہ نقاب اور حجاب جو چلن ہے، یہ ایک رسمی طور پر حجاب ہے، سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، نقاب ہے، سر کے بال کھلے ہوئے ہیں۔ سر کے بال کو اندر رکھوانے کے لیے ہی یہ پردہ تھا، اب یہاں پر حجاب ہے، سر کے بال باہر ہے۔ اس کا مطلب ہے یہودیوں کی سازش کامیاب ہو گئی۔ وہ نقاب کی آڑ میں میری بیٹیوں کو رسوا کرنا چاہتا ہے، وہ حجاب کے ڈیزائن کی آڑ میں ہماری عورتوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب پہلے موٹی چادر رکھ دینا ہے تاکہ سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم ڈھک جائے، اور ابھی اسٹال کا رواج چلا ہے، اور تاکہ اس کے بدن کا اسٹرکچر کھلا ہوا رہے۔
स्टॉल रहे, स्टॉल ओढ़े, मोटी चादर ओढ़े ताकि सारा जिस्म ढांप जाए। औरतों की चादर मरने के बाद भी जनाजे में उसकी चादर पांव से लेके सर तक, यहां से लेके वहां तक उसकी चादर रहेगी, उसकी चादर रहेगी, उसका दुपट्टा ऐसा रहेगा। तो अब साहब यहां देखें स्टॉल का रिवाज चल पड़ा है ताकि जिस्म की नुमाइश हो। यहां रिवाज चला है चुस्त हिजाब का ताकि जिस्म की नुमाइश हो, जिसको बचाने के लिए कानून पर्दा था। अब